Hi, my name is Sridhar Hangayan. I'm the festival director of Kashish Mumbai International Queer Film Festival, which is having its 12th edition right now. And we are in the second week of the festival. And you all must have seen this brilliant documentary, Mohini Men in Saris, directed by Sharmila Rajaram Shinde, who is also an actress of repute. Thank you, Sharmila, for sharing your film with all of us. Thank And you, Sridhar. And first of all, on behalf of my team, I would like to thank you for screening my film, Mohini Men in Saris. And I would like to tell you a secret before you start this interview. This is my first ever attempt at filmmaking, which you know now. But after I made the film and I got introduced to the world of filmmaking, which is a very new world for me right now. I'm still like a small baby here. I started exploring film festivals and I came across Kashish. When I saw a festival like Kashish, I thought to myself that I don't think so an honorable festival like Kashish would ever screen my film. And it is like a big surprise to me that you went on to select my film and screen it. So it's like a very big thing for me. So first of all, thank you so much. It's like a very big honor to me and my team. Thank you. No, your film is beautifully made. I mean, it's definitely also, we try to give importance to Indian films primarily, and your film is a beautiful exploration of the Lavani dancers. I mean, it's a beautiful documentary. So thank you for sharing your film with us. And we also have Arzu Sheikh and Sania Surve, who are part of the film. And talking to them is Abhay Kulkarni. He's a senior actor in films and television and theater. All of you know you. And he's also been a preview team member of Kashish Mumbai International Queer Film Festival for many years. So thank you, Abhay, for agreeing to host this particular Q&A. And over to you. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ऑल द लेडीज आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. खूप सुंदर दिसताय तुम्ही तिघीही. आणि विशेषतः मला अर्जू आणखीन सानियाला सांगायचं की तुम्ही जे फिल्म मध्ये जो दिख रहे थे आप उससे आप बहुत खूबसूरत लग रही हो. और एक्चुअली आरजू उस समय आपके बाल थोड़े कम थे और सानिया के तो थे ही थे, पर अभी बहुत खूबसूरत लग रहे हो. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. बेसिकली मैंने फिल्म देखी. लावणी बहुत ही करीब वाली चीज है. जो मराठी जो भी बंदा होता है या महाराष्ट्रीयन जो भी बंदा होता है उसके लिए बहुत ही दिल के करीब वाली चीज होती है लावणी. लावणी का बेसिक मतलब मला एक असं विचारायचं आहे तुला की आय नो आय हॅव सीन यू इन सिरियल्स अँड आय हॅव सीन यू ढोलकीच्या तालावर. ऍक्च्युली द शो युअर रेफरिंग, संतोष कोल्हेचा तो शो होता ढोलकीच्या तालावर, त्याच्यात तू करत होतीस आणि त्याच्यातनं तुला कन्सेप्ट आली. अक्षय त्याच्यामध्ये होता. सो थोडीशी प्रोसेस सांगशील का मला की तुला कसं काय फिल्म मेकिंग कडे वळावं असं वाटलं? कारण तू बेसिकली ऍक्ट्रेस आहेस. तुझं पेंटिंग मध्ये तू तुझं ग्रॅज्युएशन. So, yes, I'm primarily an actor, and I never thought about filmmaking until I made Mohini Men in Saris. Although that storyteller was already there in me since I was a kid. आप कहते हैं ना कि कोई भी इंसिडेंट किसी को अगर एक्सप्लेन करना है तो जिस तरह से आप उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हो एक स्टोरी टेलर दिख जाता है. तो वो एक हिडन चीज थी, बट कभी बहुत सीरियसली देखा था इस क्राफ्ट की तरफ. एंड आई हैपन टू डू दिस डांस रियलिटी शो विच यू मेंशन्ड, ढोलकीच्या तालावर. और वहां पे मैंने पहली बार, जैसे कि मेरी फिल्म में भी बताया है, आई वुड रिपीट द सेम थिंग अगेन. मैंने अक्षय को देखा एंड आई फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन माय लाइफ I saw a man performing Lavani. Now, I am a Marathi, I'm a Maharashtrian. I've seen Lavani n number of times, like most of us have seen. But still, there are many people like me who have never seen a man dancing on Lavani. So that was a very big surprise to me. कहते हैं ना कि आप किसी के आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हो और जब आप उस इंसान से खुद मिलते हो आप उसकी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हो और तब थोड़ा ज्यादा आप उस इंसान के करीब पहुंचते हो. आर्ट तो है ही, इट्स अ ब्रिज बिटवीन पीपल. बट जब मैं अक्षय से मिली, ही इज सच
an interesting personality to talk to. He's so humorous. उससे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर सा हो गया. और जब आप किसी के पर्सनली करीब जाते हो, आपको एक ऐसी साइड पता चलती है जो आपको बाहर से नहीं दिखती. जी जी आप सिर्फ बिल्कुल एक आर्ट देखते हो, बट आप बिल्कुल पर्सनली इंसान से कनेक्ट होते हो. बिल्कुल You meet another side of that person. You understand the struggles that the person is going through. And जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया कि बॉस यहाँ पे बहुत कुछ है जो काफी हिडन है, काफी सारे कर्टन्स के पीछे है, जो बहुत सारी दीवारें बना के छुपाया गया है, काफी चीजें क्लोजेट में है, जिससे काफी तकलीफ भी हो रही है उस आर्टिस्ट को. तो जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. One day I came back from the rehearsal and I was constantly thinking about this thing कि कितना प्यारा बंदा है, कितना इंटरेस्टिंग बंदा है, और उसका आर्ट इतना ब्यूटीफुल है. जब मैं एज अ वुमन जब मैंने उसको परफॉर्म करते हुए देखा, तो बिल्कुल भी वो चीज दिमाग में नहीं थी कि ये एक आदमी है, ये एक औरतों की तरह जेस्चर्स कर रहा है, ये औरतों की तरह ड्रेसअप हुआ है. The only thing that came to my mind was, it is so beautiful. इवन वाइल दिस शो, मुझे Yeah, याद है जब मैंने वो एपिसोड देखा था, जहाँ पे याद है कि उसने बोला था कि मैं औरत नहीं हूँ. आई मीन सुबोध yeah, वाज एंकरिंग, इफ आई एम नॉट yeah, मिस्टेकन, सुबोध भावे वाज एंकरिंग एंड yeah, ही वाज हैप्पी कि यार मतलब क्या है, तो ही सेड कि आई एम अ मैन, yeah, मी exactly. पुरुष है. सो इट वाज Mm. वेरी surprise for us also to watch a man, because Yeah. I have seen many men dancing in a sari and you know the Oh, performances, but especially आप किसी रियलिटी शो में जाके जहाँ पे सारी औरतें हैं और जहाँ पे जाके आप कुछ जाके परफॉर्म करो, इट नीड्स गट्स, mm. डेयरिंग. और वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुमने ये भी कहा है कि वो अपने अधिकार, मतलब आई कोट योर वर्ड्स व्हिच यू हैव Yeah, रिटन, yeah, the male performers choose Lavani deliberately as a weapon to fight for their rights or not, but mm. in my opinion they absolutely can. Mm. So कहीं ना कहीं तुम जो कह रही हो, थोड़ा सा इसको elaborate करोगे. मेरा इसी से मैं थोड़ा जुड़ा हुआ जुड़ी हुई बात है ये जो तुम कह रही हो कि हिडन Mm. चीजें होती है, क्लोजेट में होते हैं, कुछ चीजें होती है. पर अक्षय जैसे बंदे ने, जिसका इंटरव्यू मैंने एक्चुअली मिस किया, टू बी वेरी फ्रैंक, फिल्म में अक्षय का इंटरव्यू मैंने मिस किया. आई Yeah, वांटेड हिम टू टॉक बिकॉज जिससे yeah, तुमको इंस्पिरेशन मिला, आई वांटेड हिम टू स्पीक yeah. एनीवेज. बट कहीं ना कहीं वो हिडन वाली बात जो है, वो क्लोजेट वाली बात है, और जहाँ पे आप कह रही हो कि एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा एलोबरेट करो जी, ताकि वो तुम्हारा जो तुम्हें इंस्पिरेशन मिला है शूट फिल्म करने के लिए, वो थोड़ा और क्लियर हो जाए. सो कैन यू See, first of all, I'm definitely not an expert to talk about gender and sexuality. My artists here would speak more clearly about it. But what I would say is, there are many people out here in the queer community जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो या अपने जेंडर आइडेंटिटी हो, इसे काफी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. तो कई बार लोग आर्ट का इस्तेमाल भी करते हैं. यस आर्ट को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिकॉज आर्ट इटसेल्फ इज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन. डेफिनेटली Be it me, you as an artist, or my dancers, or anybody for that matter, or a filmmaker, it is a good platform for expressing yourself. So I'm not saying completely सारे लोग क्वियर कम्युनिटी में आर्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुड लुक एट इट एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिकॉज अदरवाइज इन डे टू डे लाइफ दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. तर जनरली कसं असतं, आता तू मला याची प्रोसेस सांगितलीस की तुला यू गॉट इन्स्पिरेशन व्हेन यू सॉ अक्षय डान्सिंग, अँड ओव्हरऑल एज अ पर्सन यू एक इंस्पिरेशन तुम्हें मिला है, क्यूरियोसिटी हो गई और काफी सारी चीजें आई. जनरली क्या होता है, कोई फिल्म करने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, यू नो, एक कथा असते, एक स्क्रिप्ट असतं, और उससे ऊपर आप सीधा जाते हो. डॉक्यूमेंट्री मेकिंग इज टोटली डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू इट, because while you're doing a fictional film, you have a start, middle and end. In documentary you have nothing, you only have an idea but you don't know how to shoot. So being a first time filmmaker,
तू कसं काय हे सगळं मॅनेज केलंस, कसं केलंस, काय केलंस? कारण खूप सुंदर फिल्म केली आहेस तू. खूप गोष्टी या टच होतात. काही गोष्टी मोमेंट्स, फार चांगल्या मोमेंट्स त्याच्यामध्ये तू शोधलेल्या आहेस त्याच्यामध्ये. बहुत ही अच्छी कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे तुमने बहुत ही मतलब दिल को कहते हैं ना कि टच किया है. सामने वाले बंदे को भी और सामने वाले बंदे के थ्रू ऑडियंस को भी टच होती है चीजें. तो वो कैसे क्या किया जाता है? थोड़ा प्रोसेस बताओगी? I had to become a student first, and when I set out on this journey with my camera woman, okay, she's a woman, with our camera, when we had to set out on this journey, we were first the viewers of the film before the filmmakers. Because like as we say that documentary films are a tool of education, learning tools. So a documentary first teaches the filmmaker, and then the filmmaker goes out and teaches things to the viewers. So while we were on this journey, things were coming to us in a very adventurous ways. So there was no plan, we didn't know anything, we were just going out with a questionnaire. I used to make a questionnaire every day of what I'm going to ask people, and with those papers, with those sheets, I used to sit in front of my subjects and talk to them. And as you know, बात करते करते आप कहीं पे भी चले जाते हो जी. एक सवाल से दूसरे सवाल, दूसरे से तीसरे में, या जैसे जैसे सामने वाला ओपन अप होता जाता है, पहले तो लोग कैमरा देख के थोड़े से सहम जाते हैं क्योंकि वो एक्टर्स नहीं है, वो they can't pretend. It's very raw space. Documentary is a very raw space that where people are they can't be guarded, they are like they are lost in front of the camera. But as a filmmaker आप उनको comfortable अगर करो तो वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं. इस फिल्म में स्ट्रेट अवे दो अलग अलग प्रवाह देखते हैं. हाँ. एक है बीन बाइक में सा तमाशा, जिसमें पूरी फिल्मों की लावणी जो प्रेजेंट की जाती है, जिस तरीके से लावणी होती है, और दूसरा था रघुवीर खेड़ेकर, कांताबाई. ये जो आई थिंक कांताबाई का इंटरव्यू देखा और मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज लास्ट वन ओनली शी एक्सपायर्ड, सो आई वाज लाइक हैप्पी टू वॉच कांताबाई. सो कांताबाई, रघुवीर खेड़कर जैसे एक ऑथेंटिक तमाशा करने वाले लोग हैं, जहाँ पे एक गण गौड़न लावणी एक सीक्वेंस में आता है, और बीन बाइक का तमाशा एक ओनली तमाशा होता है जिसमें फिल्मों के गाने होते, सारी लावणियां होती है. एग्जैक्टली. सो इन दोनों के साथ बात करते हुए कैसा, क्योंकि मैंने देखा काफी बहुत ही अलग अलग दोनों के विचार थे, कांताबाई और रघुवीर खेड़कर. इनफैक्ट जो नारायण गावकर जो हैं, कैलाश नारायण गावकर के, जो उनका नाम मुझे पता नहीं, जो बोल रहे थे, जो नाचा का रोल करते थे विठाबाई के साथ, हाँ, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, तमाशा के ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, और ये ओपन है. तो कैसे तुमने मैनेज किया इन दोनों के साथ? बिकॉज इट इज अ बैटल टू टॉक टू टू पीपल who come from two different school of thoughts. Absolutely. तो मुझे काफी कैलकुलेटेड रहना पड़ा दो लोगों से बात करते वक्त, जहाँ पे मैंने एक ऐसा अप्रोच रखा कि मैं न्यूट्रल रहूंगी. I will be neutral, like a sponge who is only absorbing the information that comes from you. मेरा कोई point of view मैंने सामने नहीं रखा. मैंने सिर्फ I acted as a good listener while talking to people who are actually talking against my thought process or against this. Yeah. Because Kantatai is talking something, Koti hai, the even that Naran Gaikwar guy जो विठाबाई के साथ थे, वो कहते कि ये तो फुसका बार है. Raghuveer Khedekar has a different opinion about, he's quite respectful towards the male dancers, quite respectful. He said that of the interview later that he speaks to a lot of male dancers in Bombay and he really loves the way they perform. So he was the only man I met in the tamasha who was quite respectful towards these dancers. Who the Raghuveer? Kantabai's son. Yeah. Okay. Not the Nacha. No, Nacha is from Narayan Gaokar troupe. Narayan Gaokar troupe मध्ये होते ते. ठीक आहे. इकडे जे पांढरे शर्ट घातलेले जे होते ते स्वतः. ओके. कई बार लोग पीयर प्रेशर में या सोसाइटी प्रेशर में भी कुछ चीजें कह देते हैं. तो
जिस तरह से नटरंग के बारे में वो लोग काफी बात कर रहे थे। नटरंग में जिस तरह से एक नाचा को सेक्सुअली अब्यूज या सोसाइटी अब्यूज कर रही है, इस तरह से दर्शाया गया था। तो वो एक डर बैठ गया तमाशा आर्टिस्ट के दिल में कि हमारे तरफ भी लोग इस तरह से देखने लग गए तो हमारा तमाशा बंद हो जाएगा। तो इस डर से भी कई बार लोग इन होमोफोबिक मेरे ख्याल से वो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वो चीज आई थी जब विश्वास पाटिल ने कहा था, जब गणपत पाटिल के बारे में कहा था कि एक्चुअली आई हैव रेड रंगनटेश्वरा से द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गणपत पाटिल एंड ही सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, यू नो द फिल्मी कैरेक्टर ही यूज्ड टू प्ले, ही सफर्ड अ लॉट। बहुत ताने सुनने पड़े और बहुत गंदी गंदी चीजें सुननी पड़ी उनको। हालांकि उन्होंने बहुत माइल्ड वर्जन में लिखा है अपने बुक में, ज्यादा वो लिख नहीं पाएंगे जितना भी हुआ था, जैसे वो रघुवीर खेड़के भी बोलते कि हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक तमाशा का ट्रेंड, इसे ट्रेडिशनल तमाशा कहते हैं वो, और एक जैसे कि आरजू और सानिया प्रेजेंट करते तमाशा, इन दोनों की स्टाइल भी अलग है। इन दोनों प्रेजेंटेशन स्टाइल भी अलग है। अब वो दोनों आगे हैं तो मैं थोड़ा सा उनकी तरफ जाता हूँ कि आरजू और सानिया, एक बताओ कि तुमने पारंपरिक तमाशा तो देखा होगा शायद, जैसे रघुवीर खेड़ेकर और ये कांताबाई किंवा काळूबाळू, अरे काळूबाळू तो खैर बहुत पुराने हो गए। तो आप लोगों का जो स्टाइल है तमाशा प्रेजेंट करने का और इनका स्टाइल है, तो आप कैसे अडॉप्ट, कैसे क्या करते हो, मतलब आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। ऍक्च्युली मी तमाशामध्ये कामही केलं आहे विठाबाई नारायणगावकरांच्या। अरे वा. हा, आणि मी आता एक फिल्म पण केली त्यांची मध्ये, विठाबाई नारायणगावकरांची फिल्म येते, उर्मिला कानेटकर आणि उपेंद्र लिमणे आहेत। तर उर्मिला कानेटकरने विठाबाईंची भूमिका केली आहे। त्यामध्ये जे विठाबाईंचं जे फड चालवायचा जो एक पुरुष कलावंत होता त्या काळी, त्याचं कॅरेक्टर मी केलं त्या फिल्म मध्ये। पूर्वा खामकरने कोरिओग्राफ केली ती फिल्म। बर आणि पुंडलिक धुमाळांची आहे ती। मला एक सांग, मला कसं विचारायचं होतं की जेव्हा आपण पारंपरिक तमाशा बघतो, मी थोडंसं प्रेझेंटेशन बद्दल बोलतोय, पारंपरिक तमाशा आपण जेव्हा बघतो तेव्हा त्या ज्या काही नाचणाऱ्या बायका आहेत, आता सुरेखाताई पुणेकर सुद्धा अलीकडे मॉडर्न मध्ये आल्या तसं बघायचं तर, पण आता कांताताईंचा तमाशा थोडंफार क्लिपिंग बघितलं असतील किंवा बाकीच्या बघितलं असतील, तर दे डोंट डू मच फिजिकल मूवमेंट्स, वो डांस में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करते, जैसे आजकल हम लोग फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में क्या होता है, कट्स में अलग अलग मूवमेंट्स होती है, दे प्ले विद देयर फेस एक्चुअली। सो जैसे बिनबाकाचा तमाशा मी बघितला, तू शायद नव्हतास, मी 2004 साली बिनबाकाचा तमाशा बघितला होता, 2004 में देखा था मैंने बिनबाकाचा तमाशा। तो वो ज्यादातर बॉडी मूवमेंट, तो ये स्टाइल अलग जो है वो आप मतलब आप खुद करते हो, कोरियोग्राफ किया जाता है, क्या करते हो, कैसे? ऍक्च्युली कसं आहे, प्रत्येक लावणीचा ठेराव वेगळा आहे, प्रत्येक लावणीत, म्हणजे बैठकीची लावणी, शृंगारिक, पारंपरिक, खडी लावणी, अजून अशा खूप खूप साऱ्या लावण्या आहेत, खूप साऱ्या लावण्यांचे प्रकार आहेत, प्रत्येकाच्या लावणीचा ठराव वेगळा आहे। प्रत्येकाच्या, आता आपण समजा विदर्भ भागात गेलो तर विदर्भ भागातल्या पदन्यास, त्या लोकांचा ठेराव, त्या लोकांचा ठेका, हे प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे। तसं आपण गावाकडे गेलो तर गावाकडच्या लोकांचं जे मुवमेंट आहेत किंवा एक्सप्रेशन्स आहेत किंवा त्यांची गाणी सुद्धा, ही सुद्धा खूप वेगळी असतात। आणि आपल्या मुंबईच्या साईडला आलं की आपण थोडं आमची स्टाईल, म्हणजे आमचं नाचण्याचं, बोलण्याचं, म्हणजे तसं गेटअप पण, इव्हन एक्सप्रेशन्स, ह्या प्रत्येक गोष्टी पर्टिक्युलर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या चालल्या जातात। अकलूज लावणी महोत्सव आम्ही करत होतो, आता ते अकलूज लावणी महोत्सव पण बंद झालं। पूर्ण पारंपरिक बाज चालतो तिकडे, बिलकुल वेस्टर्न नाहीच, काहीच चालत नाही, प्रॉपर पायाच्या नखापासून केसापर्यंत पूर्ण पारंपरिकच नटायचं। मला त्याच मुद्द्यावर यायचं होतं की जेव्हा लावणीमध्ये पारंपरिक लावणी सादर केली जाते, आता शर्मिला पण सांगू शकेल, शर्मिला त्या she was a part of that लावणी शो, जिसमें बहुत बार मुझे ना वेस्टर्न डांस दिखता था, एक्रोबैट्स दिखते थे, यू नो, आप कार्टव्हील मार रहे हो, आप बैक जंप कर रहे हो, बैक फ्लिप मार रहे हो। सो आपको क्या लगता है कि लावणी में ये चीजें चाहिए जो पारंपरिक लावणी करते हैं, ये काय म्हणजे तुला काय म्हणायचं, तो फॉर्म हा त्याच्यामुळे बिघडला जातो का, त्याच्यामध्ये ऍडिशन होते, काय होते? चाहिए एक्चुअली, ये लावनी में लाइक हर एक चीज में कैसे डेवलपमेंट होता है, तो कुछ उसमें जोड़ने से या इंक्लूड करने से दैट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल और मोर अट्रैक्टिव। पीपल लाइक टू सी न्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइक 2000, नाउ वी कैन से 21। अगर आज के जमाने में भी हम वही टाइप का हर एक चीज करेंगे तो some people will choose
choose it. Some people will like it, some will dislike. हम्म. So if adding things can make it beautiful, so we add things while dancing, while doing get-ups. पण ऍक्च्युली आता कसं झालंय, एक जो लावणीचा आपला एक लावणी म्हटलं आपल्या महाराष्ट्राचं लोकनृत्य आहे लावणी. तर त्या लावणीला काय झालंय, थोडं वेस्टर्नाइज थोडासा पार्ट दिला गेला किंवा त्याला थोडंसं मुवमेंट अशा केल्या गेल्या की ते थोडंसं वेगळं दिसतं, अट्रॅक्टिव्ह दिसतं. आणि आजकालच्या म्हणजे आपण कसं झालंय, आपण म्हणजे रसिकांसाठी नाचतो, तर प्रेक्षकांसाठी आपण परफॉर्म करतो. तर प्रेक्षकांना काय पाहिजे हे बघून परफॉर्म करावं लागतं. कधी कधी आम्ही शोजला पण जातो, तर शोला पण तिकडची रिक्वायरमेंट काय आहे हे बघूनच आम्हाला गाणी चॉईस करावी लागतात. आता तिकडे जर मी एखादं जुनं गाणं चॉईस करून नाचली तर ते पब्लिकला आवडणार नाही कदाचित. बरोबर. तरी नाही, असं झालेलं पण आहे खूपदा शोज मध्ये की आमच्या बरोबरचे बाकीचे कलाकार असतात, त्यांनी जर ती गाणी चॉईस केली तर त्या लोकांना तेवढा रिस्पॉन्स नाही. आणि एखादं असं उडतं गाणं किंवा छान गाणं घेतलं तर लोक जास्त रिस्पॉन्स देतात किंवा वन्समोर्स देतात. बरोबर. आताच्या म्हणजे याच्यामध्ये ही चाललंय, असं कंडिशन झाले पुन्हा लावणीची. तर ती लावणीची असतं तरी मला असं कुठेतरी वाटतं की हे लावणीचं संपत चाललेलं अस्तित्व कुठेतरी जपावं आणि जे पारंपरिक साज आहे, जो पारंपरिक बाज आहे तोच कंटिन्यू ठेवावा, असं माझं तरी मत आहे. एक्झॅक्टली. शर्मिला, मला तुला असं विचारायचं वाटतं की ही ओव्हरऑल प्रोसेस टोटल किती दिवसांची होती शूटिंगची तुझी, आणि ह्या रत्नांना कसं सिलेक्ट केलंस तू? शर्मिलाची आमची भेट म्हणजे एका शोला. आमचा लावणी महासंघाचा दरवर्षी वर्धापन दिन असतो, वर्धापन सोहळा असतो. त्या सोहळ्यासाठी ही अक्षयचं शूटसाठी आली होती आणि तिथे तिला त्याच्या आधी एक आपला कॉल झाला होता, ते तू विसरतेस, ते मी सांगते आधी. डेफिनेटली तेव्हा भेट झाली. मैं डांसर्स ढूंढ रही थी, लोगों को कॉल कर रही थी, एक डांसर मिला, उससे कह रही थी प्लीज और डांसर्स के नंबर्स दीजिए, ये प्रोसेस चल रही थी. उस दौरान यूट्यूब पे मैंने सानिया का वीडियो देखा था और उस वक्त सानिया एड्रेस्ड herself as Nikhil. I used to keep scrolling through YouTube and Google videos to find these dancers. And I ended up watching Nikhil, which is Sania now. Yeah. Sania's video, and I was so mesmerized seeing him dance because in the film you must have seen he is so beautiful on stage, and when he starts dancing, you can't take your eyes off. Yeah. His expressions are Very so good. capturing. Very true. And definitely I was looking at his video because I was trying to find dancers, but I ended up becoming his fan. And for next few days I used to only watch his videos for the sake of watching his videos, you know. Not because I wanted, of course I wanted him in my film, but वो तो बाजू में रह गया. मैं सानिया के वीडियोस देख रही थी अपनी खुशी के लिए कि मुझे मजा आ रहा है इसके परफॉर्मेंसेस देख के, और मैं इतने शौक से वो वीडियोस देखती थी. आई यूज्ड टू शो दोस वीडियोस टू माय फ्रेंड्स कि लुक एट दिस डांसर, so beautiful, and her expressions are wonderful. I'm talking about you, Sania. So Welcome back. Yeah. It was like a fan thing for me. I was like hooked on to his videos and continuously watching his videos. And I remember एक शाम को मैंने सानिया को कॉल किया एंड मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं एक फिल्म बना रही हूँ और मेरा नाम शर्मिला राजाराम शिंदे है, मैं पुरसे पाउल में रूपाली का काम करती हूँ. एंड ही वेंट साइलेंट, लाइक आगे से कोई, सामने से कोई आवाज नहीं आई. तो आई वाज लाइक hello, are you there? And he was like, you're lying. No, it can't be Sharmila. And I said, no, I swear this is me. And he was so happy to hear my voice because वो मेरा शो काफी फॉलो करती थी और उसे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद था. और मेरे उसके बाद वो खुद बात करने लगी. वो उसका वो फैन मोमेंट था, पहले मेरा फैन मोमेंट था कि मुझे आपका डांस बहुत पसंद है, और फिर सानिया का फैन मोमेंट था कि वाओ आई लव रूपाली और मैं आपका शो देखती हूँ. गिव एंड टेक हो गया दोनों का. Yeah. So this is how I found these two gems in my film. Okay, great. डिफिकल्टीज बद्दल आपण म्हणत होतो की जेव्हा फिल्म करताना बऱ्याचशा डिफिकल्टीज, आता टेक्निकल डिफिकल्टीज खूप आल्या होत्या मध्यंतरी,
आपला झाल्यानंतर हाँ तो दैट इज द मेन विटामिन एम इज मेन थिंग बाकी तो एबीसीडी हो जाता है पर एम में प्रॉब्लम हो जाती है तो हाउ यू मैनेज दैट See, for any artist or for any filmmaker, एक इमोशनल कंट्रीब्यूशन होता है आपके प्रोडक्ट में, आपके आर्ट में, आपके प्रोजेक्ट में. देयर इज अ पार्ट ऑफ यू, योर सोल, समथिंग इंटरनल, काफी इंटीमेट होता है आपका आर्ट. आप कितना भी कहो कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये किसी और की कहानी है, बट कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल चीज हमेशा झांकती है. डेफिनेटली वो होता है, वो थोड़ा सा थिन लाइन होता है, वो जिसको समझ में आता है उसको समझ में आता है. एंड वी एज फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट, वी आर इमोशनली ड्रिवन. इट कांट बी अदरवाइज. There is a commercial aspect to filmmaking, but apart from that, it is an emotional journey for any filmmaker. And if you're not emotionally driven, you can't make a project happen. It is not possible because it's a sentimental thing. You pour in a part of you in every film or every character you do. Otherwise, it's not possible. We are not just sitting in an office doing a 9 to 5 job. It's an emotional thing for artists. I was going through a little traumatic period in my life. I was out of a relationship, and it was a very important part of my life. And मैं मेरे एक पार्टनर के साथ ये फिल्म बना रही थी. And we went to separate ways during the process, in the initial phase of the process. And I was myself going through a very big emotional trauma in my life. And I thought, अब मैं ये फिल्म नहीं बना सकती क्योंकि मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है. My ex-boyfriend, he comes from a film school, and they know about it. So, but we are not going in the depth. He comes from a film school, and it was like a big support for me. He's there, and he'll take care of the technical stuff. And I was not in that mentally in that phase कि मैं एक फिल्म पूरी कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था. फिल्म मेकिंग के बारे में, कुछ टेक्निकल एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ एक विजन था. बट this film helped me get out of my trauma, and my trauma also helped me complete it. मला आरजू आणखीन सानिया दोघांना विचारायचं की आता तुम्ही लावणी डांसर म्हणून काम करता आहात. सानिया, आपने तो एक फिल्म में भी काम किया था. आरजू, आप अपार्ट फ्रॉम लावणी कुछ करती हो, आप कुछ करती थी, आगे का क्या कुछ सोचा है आपने? Like apart from Lavani, I work as a beautician and hair expert. But due to lockdown, like I am only doing freelancer orders and all. Okay. So have you learned Lavani before? Because I've seen you. तुमने जो लावनी की थी, इतनी, एक तो कारभारी दमानं होऊ द्या दमानं वो लावनी थी. उससे पहले भी तो कुठली होती ती, रोखून पाहू नका, ते वो हा ते होती. तुझी तर मी हिरवा शालू बघितली, सगळ्या ज्या इथं बघितल्या त्या लावण्यामध्ये. सो क्या मतलब क्या बोलूं? No, like that time तो मुझे wordings वगैरह समझते नहीं थे. And then I used to dance only on beats, and like expression and all. I used to do follow that only. Okay. Otherwise, like पूरी तरीके से at that time I am talking about कि तभी मराठी इतनी नहीं समझती थी. Still I used to, like, I never practiced and all, but I used to perform. Okay, but it was wonderful, really nice. हिरवा शालू किंवा तुझी पण लावणी खूप सुंदर होती सानिया, खूप सुंदर लावणी होती. मला सांग शर्मिला, अभी ये अभी कितनी, मतलब कहाँ ये फिल्म दिखाई गई है अभी तक, क्या उसका किया है तुमने? लिफ्ट ऑफ फेस्टिवल जो है लंदन का, वहां पे स्क्रीन हुई है. मावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज, उनका समाभाव फिल्म फेस्टिवल है. समाभाव के थ्रू ऑलमोस्ट हर स्टेट में इंडिया के
स्क्रीन हुई है. And even Bangalore Times went on to say that this is one of the films to look forward to in Samabhav. उसके बावजूद फिल्म भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है, महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है. तो इट्स द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड. सो अभी कशिश में भी स्क्रीन हुई है, तो अभी और भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और जगह पे स्क्रीन होगी. काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे मिला है. और कुछ क्रिटिसिज्म तो होता ही है, बट डायरेक्ट क्रिटिसिज्म तो नहीं मिला है अभी तक. ऑब्वियसली जिन जिन लोगों ने, जो मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, जिन्होंने घर पे आके फिल्म देखी है, तो सबने वैसे अच्छा ही बोला है. कुछ मैं जानती हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं काफी होमोफोबिक लोगों से घिरे हुए हैं, हम उन्हीं के बीच में रह रहे हैं. तो होंगे ऐसे लोग जिन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में सोचा होगा, बट मुझ तक नहीं आया. रिएक्शन होते जेव्हा त्यांना कळलं की ही फिल्म येते मोहिनी, तर वाव, म्हणजे त्या लोकांचं असं होतं की तुमचा म्हणजे आमचा एक्सपिरियन्स खूप होता लावणी बरोबरचा. आमचं लावणी बरोबरचं एक परिवारच होता माझा, लावणी आणि आमचा. तर तो एक फिल्मचा जो शर्मिला सोबत काम करायचा जो एक्सपिरियन्स होता, तो खूप 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 चांगला होता. तेवढा भाऊक पण होता. काही काही बोलता बोलता पण थोडंसं असं भाऊक व्हायला होत होतं. काही आठवणी सांगताना भाऊक व्हायला होत होतं. इवन फिल्म जेव्हा मी बघितली पहिल्यांदा भवन्सला, तेव्हा त्यातले पण काही काही जे मी स्वतः बोललेली जे डायलॉग होते, त्यावर पण मला थोडंसं म्हणजे रडू आवरत नव्हतं, असं मला झालेलं खूप त्या फिल्म बघताना सुंदर, सुद्धा. तू सुंदर म्हणाल होतेस तू की शंकर पार्वतींच्या मिश्रणात नाही, तुम्ही देवाला कधी नावं ठेवता का, देवाला कधी असं करता का. खूप चांगलं होतं. तो इवन आरजू के बारे में भी, आरजू की फैमिली वाले पूछे थे कि अभी इसका शो कब लगेगा, क्या लगेगा. सो अभी फैमिली का रिएक्शन क्या है, उन लोगों से किसी ने देखा तुम्हारी फैमिली में से. मैं सानिया, तुम्हारे माँ की रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट थी कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते, ये बाहर क्यों नहीं रहते. पर अब जाके क्या उन लोगों ने, किसी ने फिल्म देखी, उन लोगों ने, उनमें से किसी की रिएक्शन कुछ है आरजू तुम्हारे फैमिली? रिसेंटली जब अंधेरी में हुआ था इनॉग्रेशन, एंड देन एट दैट टाइम जब हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे हमने पोस्ट किया, और उस पे न्यूज में भी, बैंगलोर न्यूज में आया था. इवन अंधेरी भवन्स के भी फोटोज वगैरह जब अपलोड किया, दैट टाइम पीपल गॉट टू नो कि वी आर डूइंग समथिंग. दैट वाज नॉट अ टाइम पास. Even after the shoot, it was on, it has happened in 2016, and धीरे 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 it took time, and of course एक खूबसूरत चीज बनने में टाइम लगेगी. तो after that we felt कि हाँ, now people are recognizing, even in that what we had spoken, people can recognize now कि what we are, or what we try to express through Lavani, and also into sexuality also. So in a way people have started taking you seriously. Initially जो एक अलग नजर से देखते थे, अलग नजर से तुमको, जैसे कहा गया कि हमको मतलब चेष्टा करायचे, मतलब हिणवायचे, कुछ ताने मारते थे, कुछ करते थे. Now people started taking you seriously कि नहीं, ये कला है और ये बंदे हैं जो कर रहे हैं दिल से. Yes. So many people तो awaiting that, like what kind of movie it was or a project. Many people was waiting, but explaining everyone is not easy. So we just told them कि it's a project movie for Sharmila Shinde, and we are cooperating with her, and she is also trying to like make we people up. There is no profit for her or any other person, but she is doing very great work. So even my family was they responded कि हाँ, she is doing very well kind of work. असं बोलते की लोक आहेत ना, काम झालं की देव पण बदलतात, आणि काम नाही झालं की देवाला पण दगड मारतात. तशातलीच गत आहे की, कारण कसं आहे, लोकांना जर लोकांचं म्हणजे इतराविषयी जर द्वेष असेल किंवा त्याला हिणवायचं असेल, तर लोक काही पॉइंट शोधून काढणार. बरोबर आहे. आणि जेव्हा ती व्यक्ती किंवा तो माणूस किंवा काही जे चांगलं झालं
तर त्याच्या मागे फिरणार की नाही नाही छान 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 असंच चालू होतं आणि एवढे वर्ष सुद्धा हेच चालू होतं आणि अजूनही लोकांची मेंटॅलिटी बदललेली नाहीये. अजूनही लोकांचं तेच चालू आहे. ओके. पण मग तुझ्या घरातनं जी निगेटिव्ह आता तर माझ्या घरी 100% मला एकदम चांगलं सपोर्ट आहे. व्हेरी गुड, मला व्हेरी गुड. एकदम त्या लोकांना असं प्राऊड फील होतं की मी त्यांचा मुलगा आहे. मुलगी आहे, जे काय असेल ते. तू त्यांचं घरचा एक मेंबर आहेस, ज्याला तू आता ते ऍक्सेप्ट केले गेले. तर मला हे ऍक्सेप्टन्सच्या लेवलवरती ही खूप चांगली तुम्हाला फिल्मचा तुम्हाला ही मदत झाली असं मला वाटतंय, की त्यामुळे तुम्ही लोकांच्या समोर तुमचं मन उघडं केलं. तुम्ही जो लगता है वो आपने ओपन करके बोला और लोगों ने आपको सुना, समझा, माना, अपनाया, है ना. शर्मिला, मला एक म्हणते मोहिनी हे नाव देण्यामागचं काय थोडंसं मला सांगू शकशील का? मोहिनी हाँ विष्णु अवतार है। मोहिनी विष्णूचा अवतार. यस, विष्णु अवतार है जिसने भस्मासुर का वध करने के लिए वो अवतार लिया था। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये नाम, क्योंकि काफी सारी मेंटालिटीज का वध करना इज द नीड ऑफ द आवर। तो उस हिसाब से मोहिनी काफी एप्ट नाम है। और मोहिनी का मतलब भी काफी सुंदर है कि जो मोह करे, आपको मोह में डाले। तो ये जो डांसर्स है, जिस तरह हम उनको देख के मोहित होते हैं जब हम उन्हें स्टेज पे देखते हैं, तो मोहिनी इज अ वेरी एप्ट नेम for this film and for all these Mohinis in my film. So I thought this is the best name. एक्चुअली भस्मासुर से पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत निकला था, तो अमृत बांटने के समय मोहिनी आई थी, जो दानवों को ना मिले, देवों को मिले। और सबसे बड़ी बात है कि लावणी जिसे कहते हैं, लावणी लवण शब्द से आती है। लवण का मतलब है नमक, जो भी समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे ना, उसमें से एक था अमृत, तो था ही था, पर जो अपनी जिंदगी में टेस्ट लाता है, चव आणतं आपलं, ते मीठ असतं। आणि मीठ म्हणजे लवण, आणि लवण म्हणजे लावणी, आणि लावणी आपल्या जीवनामध्ये रंग भरते, आपल्या जीवनामध्ये ती काहीतरी ऊर्जा देते। तो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू अगेन। पुढचं काय प्लॅन नवीन फिल्मचं का? Definitely, I am looking forward to make another documentary film in collaboration with two other filmmakers, Nizamuddin Shah and Tanvi Patankara, two filmmakers who made Ekta Khan. It's a film जो अभी एक विंच फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी। तो उनके साथ उन्होंने मोहिनी देखी और उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड दे वर लाइक कि वी वांट टू कम एंड मीट यू। दे केम होम एंड दे सेड दैट वी सॉ योर फिल्म एंड इट्स सो वंडरफुल, वी वांट टू मेक अ फिल्म विथ यू। So now I am starting another documentary with two young filmmakers. They are young and brilliant. And this, I won't discuss the topic, but it's another very impactful subject. It's not an LGBTQ subject this time, but it's another topic which is the need of the hour. आरजू, आणखीन सानिया, तुमचं आगे क्या मतलब क्या सोचा है तुम लोगों ने? अभी पूर्णतः माझं जे करिअर स्टार्ट झालं तेव्हापासून आतापर्यंत मी फिल्म्स, शोज, नाटकं, मी खूप सारी नाटकं केले। शांतीच गार्डन नाटकामध्ये पण मी काम केलं, छोटासा रोल केला होता। मला छोटीशी का होईना पण कोणत्या तरी सिरियल मध्ये किंवा एखाद्या पिक्चर मध्ये किंवा कुठेतरी अशी भूमिका करायला मिळावी, म्हणजे अजून पण माझी इच्छा आहे। म्हणजे एवढ्या स्टेजला पोहोचल्यानंतर पण माणूस तर शिकत असतो। सो डेफिनेटली तुम्हारी आरजू पूरी होगी सानिया, आरजू तुम्हारी भी आरजू पूरी होगी जो भी है। And it was wonderful talking to you, Sridhar. Thanks a lot for this wonderful conversation. Thank you, Abhay. For you only know what is beautiful about you is, like, as a host, is you know the intricacies of Lavani. You have already performed as a Lavani dancer yourself, and you're a performer. So you brought out so many different aspects of the conversation so brilliantly. And thank you, Sharmila, for joining the conversation and talking about the film. And thank you, Sania and Arzu, for being there and making. I mean, you're making history with this particular format of Lavani per se. If you have any questions for Sharmila or Sania or Arzu, please put it in the comment box right here, and I'll make sure that they'll answer that. And there's one more week of Kashi still remaining. So please go to mumbaiqfs.com and buy your last weekend pass.
and you still get to see so many good LGBTQ films from various countries. So thank you all for joining this conversation. Thank you, Sridhar. Thank you, Abhayji. Thank you so much for having us. Thank you so much.